Good evening, students. So today we will do some uh, part of your for NTSC exam from the chemical control and coordination chapter. Okay, so we will discuss about the control and coordination, and first we will discuss some part of the control and coordination from the neural control, because control and coordination के जो chapter है that is based on two part. एक में neural control है and in one part there is the chemical control. So first we will discuss about the neural control. So neural control में we know that the main part of the neural control is the CNS, that is the central nervous system, which is made up of brain and spinal cord. Brain and spinal cord. So now we will make a chart, and that chart will be very important to execute all the answers. So central nervous system को where from central nervous system जो है that is made up of brain and spinal cord, यहाँ से कहाँ तक पहुँचता है. So central nervous system will give their messages to peripheral nervous system, and peripheral nervous system is made up of different nerve. One is cranial nerve, and one is the spinal nerve. So cranial nerve is associated with our brain, and the spinal nerve is associated to our spinal cord. Okay, so the basic thing is that कि central nervous system जो है, central nervous system will provide the messages to the PNS, and again the PNS will provide the message to the CNS. Okay, now this peripheral nervous system is of two type. One is the sensory, one is the sensory nervous system, one is the motor nervous system. Okay, so one is sensory and one is motor. तो देखो बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट है वो दो तरह के हैं. कुछ नर्व्स होता है जो कि सीएनएस से पीएनएस तक, पेरिफेरल तक लेकर आ जाता है, और कुछ है जो कि पेरिफेरल से ब्रेन तक पहुंचता है. ठीक है, सो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट इज नोन एज द सेंसरी, वो सेंस को ब्रेन तक पहुंचाता है. दैट मीन्स इट विल कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द receptor to brain, and again the motor nervous system है that will carry the responses from the brain to the effector. And all these are very important questions. Okay, again motor nervous system is of two type. One is the autonomic nervous system, one is the somatic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, मोटर नर्व्स मतलब मोटर नर्व जो कि हमारे ब्रेन से नर्व इम्पल्स को इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाता है, उनमें से कुछ नर्व है जो कि जिनके सप्लाई हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक होता है. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर दोज नर्वस सिस्टम जिनके नर्व सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड टू इनवॉलंटरी ऑर्गन. इनवॉलंटरी मतलब जिनके मूवमेंट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. लाइक कि जो हार्ट को हम अपने मर्जी से बंद नहीं कर सकते, अपने मर्जी से चालू नहीं कर सकते. सो दैट इज एन ऑटोनोमिक ऑर्गन. ओके, देन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू द voluntary organs. Okay, so again this autonomic nervous system has two branches. One is the sympathetic nervous system, and one is the parasympathetic nervous system. So generally sympathetic nervous system are active during the इमरजेंसी कंडीशन. अगर किसी चीज़ को आप देख के अचानक देख के डर जाते हो तो आपके हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है.
एंड दैट इज़ ड्यू टू सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो है ये नॉन इमरजेंसी टाइम में, जो नॉर्मल टाइम है उस टाइम में इन्फेक्ट कर मतलब काम करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या क्या करना है आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट यू नीड टू डू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट टू यू नीड टू डू, सेंसरी नर्व्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करवाते हैं, दैट यू शुड नो, ओके। एंड ऑटोनॉमिक के सप्लाई इनवॉलेंट्री में है या वॉलेंट्री में है। सो दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव लेवल, ओके। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों ने नर्व्स के कॉम्पोजिशन के बारे में किए थे, तो आज हम नर्व के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, लाइक कि फर्स्ट हम करेंगे नीजल्स ग्रैन्यूल। फर्स्ट हम करेंगे नीजल्स ग्रैन्यूल। तो बेटा नीजल्स ग्रैन्यूल क्या है? नीजल्स ग्रैन्यूल एक endoplasmic reticulum, basically it is made up of endoplasmic reticulum and ribosome, ठीक है। एक राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बने हुए एक पार्टिकल है। कहाँ पर होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोन और द सेल बॉडी ऑफ द नर्व। फंक्शन क्या है? इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस, it is associated with the protein synthesis, or you can say also it is a help in the मतलब नर्व में, नर्व सेल के अंदर कोई सेंट्रियोल्स नहीं होता है, सो नर्व सेल कैन नॉट डिवाइड, ओके। सो कभी अगर नर्व सेल डैमेज हो जाए तो दैट डैमेज कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस नीजल्स ग्रैन्यूल, ओके। देन एक है कि आपका नोड्स ऑफ रेनवियर वगैरह आपने पढ़ रखा है। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डू, दैट इज द श्वान सेल्स। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द श्वान सेल्स? बेटा श्वान सेल की फंक्शन है, इट विल हेल्प इन synthesizing the myelin sheath. You know there is one fat layer present in some over some axon, and that cells are known as the Schwann cells. They will be responsible for synthesizing the myelin sheath. This is a very very important question. Okay, next part देखो आप हमारे जो नर्व है एंड जो ब्रेन है, यहाँ पर वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर दो चीज़ होता है, ठीक है। सो वेर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से कहाँ पर वाइट मैटर होगी, कहाँ पर ग्रे मैटर होता है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आता है। सो फर्स्ट वी विल डू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर इनसाइड द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो है, ब्रेन के अंदर होती है वाइट मैटर एंड ब्रेन के बाहर जो है दैट इज़ द ग्रे मैटर, ओके। सो दिस इज we can observe in case of the brain. This is a very important, which of the following is true or false, उसमें ये question आता है कि white matter बाहर होता है या gray matter बाहर होता है, ठीक है। and next part में we will do about the spinal cord. तो spinal cord में the condition is just opposite condition. that means spinal cord में जो outer region है that would be made up of white matter and the inner part would be made up of the gray matter, and we can have this type of organization within the spinal cord, okay. So these are some important topic. next है कि next that is the part of अब अच्छा एक चीज़ और, वाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या है, तो इनके ऊपर ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर यू शुड नो दिस मैटर क्योंकि आपका एक नॉर्मल क्वेरी जनरेट हो सकता है। सो ग्रे मैटर इज़ बेसिकली नर्व सेल से बने हुए होता है, और ग्रे मैटर के अंदर जो आपके सेल बॉडीज़ हैं उनके एक्यूमुलेशन होती है। वाइट मैटर के अंदर दिस इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द एक्सॉन फाइबर। Next we will discuss about the, that is it is a very important part कि types of neuron based on the number of axon and dendron. Okay, so there are three types of neuron. One is the unipolar neuron, one is the bipolar neuron, and one is multipolar neuron.
ठीक है, तो व्हाट इज डेंड्रॉन, व्हाट इज एक्सॉन, दैट यू नो. सो सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, जस्ट इट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम. एंड यस, and suppose this red color indicates the dendron. This black circle is indicating the presence of cytone or the cell bodies, and this green color indicates the part of the axon. Okay, so हमें अभी यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर में ये चेक करना है कि कितने साइटोन्स होता है, कितने एक्सॉन्स होता है और कितने डेंड्रॉन्स होता है. ठीक है, तो पहले देखो मैं क्या करूँगी, पहले तीनों में ही आई एम मेकिंग वन सर्कल, मतलब तीनों में ही यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, तीनों में ही एक एक करके साइटोन होगी. ठीक है, अब देखो यूनिपोलर में क्या है, यूनिपोलर में आई एम मेकिंग वन एक्सॉन. मल्टीपोलर जो बाइपोलर जो है वहाँ पर भी आई एम मेकिंग वन एक्सॉन, मल्टीपोलर जो है वहाँ पर भी आई एम मेकिंग वन एक्सॉन. ठीक है, तो मतलब यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर तीनों में ही एक साइटोन एक एक्सॉन, ये कॉमन है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ द डेंड्रॉन. तो बाइपोलर में लुक आई एम मेकिंग टू डेंड्रॉन, एंड मल्टीपोलर में आई एम मेकिंग many dendrons. Okay, so there is one galti present is this diagram, because I am just mentioning the axon with the green color. Okay, so that is the condition. Unipolar में dendron absent, bipolar में दो, sorry, बाई मीन्स टू, मतलब यहाँ पर एक न्यूरॉन, एक एक्सॉन, एक डेंड्रॉन, और मल्टीपोलर में जो है वहाँ पर काफ़ी सारे डेंड्रॉन बट एक ही एक्सॉन, मतलब किसी भी तरह के नर्व क्यों ना हो, सो वी विल ऑलवेज गेट ओनली वन टाइप ऑफ axon, only one axon will be present there. Bipolar neuron is very important because it is found in our eye. हमारे आई के जो रेटिना है, रेटिना के पास ये bipolar neuron के layers is present. Okay, so that is a very important question. Next देखो, next हम करेंगे कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स. ओके, न्यूरॉन के अंदर कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स होता है. So okay, better to before that we will discuss different types of yes, acetyl, different types of neurotransmitter. So you know what is neurotransmitter. In your NCERT book you just come to know कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक नॉब के पास होता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक मैसेज कैरी करके लेके जाते हैं. ठीक है, सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट दिस न्यूरो transmitter, and we should know that neurotransmitter is of two type. One is the stimulation, एक जो है वो stimulatory in action, एक जो है that will be inhibitory in action. मतलब एक न्यूरॉन ऐसा है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक मैसेज को कैरी करके ले जाता है, एंड दे विल बी नोन एज द स्टिम्युलेटरी इन एक्शन. लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जो मैसेज के जो ट्रांसमिशन है उनको प्रिवेंट कर देते हैं. तो लाइक दैट की स्टिम्युलेटरी जो न्यूमोरॉन है उनका नाम है एसिटाइल कोलिन, उनका नाम है एसिटाइल कोलिन. एंड देन एपिनेफ्रिन, देन सॉरी नेफ्रिन, देन नॉर एपिनेफ्रिन,
सो दीज आर द स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिनमें से एसिटाइल कोलिन जो है दैट इज़ द मेजर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनका नाम है गाबा, देन डोपामिन। So these are few example of the neurotransmitter inhibitory neurotransmitter. Okay, so that is all. Next topic क्या करना है हमें? Next we will do some neuroglial cells. Neuroglial cells जो हैं उनमें से there are different types of neuroglial cells like astrocyte, oligodendrocyte and then microgliocyte. There are different types of cell, but जो न्यूरोग्लियल सेल के बारे में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट करना है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट, दैट इज अबाउट द oligodendrocyte. Okay, so why it is important? Oligodendrocyte is important because they are helpful in synthesizing myelin sheath. Okay, they will be helpful in sharing myelin sheath, and that is why they will be known as the that their जो function है that is very important. Okay, next point जो हम करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर से कि न्यूरॉन एक एक्सॉन से जब nerve impulses is transmitted, then how does it transmit? तो इसके बेसिक पार्ट आप लोगों ने कर रखे हो। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, मैं बस आपके कंपटीशन के पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। सपोज दिस इज द एक्सॉन, इस एक्सॉन के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोटीन चैनल्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल मतलब क्या है कि एक ऐसा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आयन की मूवमेंट पॉसिबल है। सो दैट इज नोन एज द प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल मतलब ये नहीं कि ये प्रोटीन के मूवमेंट को अलाउ करता है। प्रोटीन चैनल मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोटीन से बने हुए चैनल जो कि डिफरेंट आयन की मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो एक्सॉन के अंदर ऑलवेज ऐसे तीन प्रोटीन चैनल इज एग्जिस्टिंग। ओके, 3 protein channel is existing, and what are these 3 channel? ये जो 3 चैनल है, one will be सोडियम, पोटेशियम पंप, एक है केबल सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और एक है जिसमें केबल पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ओके, तो हर किसी एक्सॉन में 3 दरवाज़ा होता है। एक है सोडियम पोटेशियम पंप, एक है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, एक है पोटेशियम गेटेड चैनल। सोडियम पोटेशियम पंप नाम से ही ये पता चल रहा है कि ये सोडियम के एंट्री को, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों के मूवमेंट को अलाउ करता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो केवल सोडियम के ही मूवमेंट को अलाउ करता है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो पोटेशियम के मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है? नॉर्मल कंडीशन में ये जो एक्सॉन की, दिस इज सपोज द आउटर साइड, this is the outer side and this is the inner side of the axon membrane. This is the outer side and this is the inner side of the plasma membrane. अब जनरल कंडीशन में मतलब जब नॉर्मल कंडीशन है, जब कोई यहाँ पर स्टिम्युलेशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इन दैट केस क्या होता है बेटा, आउटर साइड में सोडियम आयन की अबंडेंस होती है एंड आउटर साइड जो है वो पॉजिटिव है, और जो इनर साइड है वहाँ पर पोटेशियम आयन के अबंडेंस होता है, एंड इसके वजह से इनर साइड जो है दैट विल बिकम
नेगेटिव। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब स्टेबिलाइज स्टेट में है तो एक्सॉन के दोनों साइड में विच वन इज पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव। आउटर साइड इज पॉजिटिव, इनर साइड इज नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब आउटर साइड में क्या है, आउटर साइड में ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयन की अबंडेंस होती है। इनर साइड नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इनर साइड में पोटेशियम आयन की अबंडेंस होती है। ठीक है। जैसे ही, और ये सोडियम और पोटेशियम की बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, इट विल बी मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के काम क्या है, इट ऑलवेज हेल्प द मूवमेंट ऑफ टू पोटेशियम आयन इन, दो पोटेशियम को अंदर करते हैं एंड 3 सोडियम आयंस आउट। ओके, सो 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं। ठीक है। अब अगर कोई स्टिम्युलेशन हो, स्टिम्युलेशन मतलब आपके हाथ में शायद मैंने कोई गरम कोई पतीला या ऐसा कुछ रख दिया, तो व्हाट विल हैपन, दिस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल विल ओपन, एंड जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं तो काफ़ी सारे सोडियम, ना कि केवल लिमिटेड अमाउंट सोडियम, काफ़ी सारे सोडियम स्टार्ट्स टू गेट्स इन साइड द आपके दिस एक्सॉन। एंड इसके वजह से क्या होगा, जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, व्हेन द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल विल ओपन अप, आफ्टर दैट क्या होगा, अंदर सोडियम आयन की अबंडेंस हो जाएगी। अगर अंदर सोडियम आयन के अबंडेंस होता है तो इनर साइड जो है, इनर साइड विल बिकम positive whereas the outer side of the membrane will become negative। मतलब पोलैरिटी जो है वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया था। ठीक है, कंप्लीटली जो पोलैरिटी है दैट हैज बीन कंप्लीटली रिवर्स। ये जो कंडीशन है जहां पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है, दिस कंडीशन इज नोन एज द डीपोलराइजेशन। दिस कंडीशन विल बी नोन एज द डीपोलराइजेशन। ठीक है। और ये इसी डीपोलराइजेशन के वजह से नर्व इम्पल्स कैन बी जनरेटेड, और डीपोलराइजेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चार्ज डिफरेंस। तो देखो ये जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में भी आप देख सकते हो कि एक्सॉन के दोनों साइड में कुछ पोटेंशियल चार्ज के डिफरेंस है, तभी आउटर साइड पॉजिटिव, इनर साइड इज नेगेटिव। ये जो नॉर्मल कंडीशन में जो पोटेंशियल चार्ज की डिफरेंस होती है दैट इज नोन एज द रेस्टिंग पोटेंशियल, दैट इज नोन एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ये कंसिडर किया जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू विल बी 70 मिलीवोल्ट, whereas डीपोलराइजेशन की वजह से जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है उनका नाम क्या है, उनका नाम है एक्शन पोटेंशियल, दैट इज नोन एज द एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल के जो चार्ज है दैट विल बी अबाउट प्लस 90 मिलीवोल्ट। ओके, अब लाइक दिस डीपोलराइजेशन जब क्रिएट होता है तो यहाँ पर देखो इनर आउटर साइड नेगेटिव, इनर साइड पॉजिटिव, लेकिन क्या है, इनके बिल्कुल साइड वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर कोई स्टिम्युलेशन नहीं है। तो वहाँ पर जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता है सेम कंडीशन इज परसिस्टिंग। ओके, कि आउटर साइड इज पॉजिटिव एंड इनर साइड is negative. Now we know that positives are attracted by the negative, तो ये जो wave है this wave will move to this side and बाहर भी it will move to this side. Okay, like this small circuit will be generated and nerve impulse always generates like small target। और after that जब stimulation end हो जाता है तो potassium channel will open up and again सोडियम के जगह पर पोटेशियम की इन्फ्लक्स शुरू हो जाती है and again resting potential will be established, that is known as the re-establishment of resting potential, or it is also known as the
रीपोलराइजेशन। क्वेश्चन क्या क्या करोगे बेटा? फर्स्ट आप करोगे आउटर कंडीशन में क्या कंडीशन होता है, इनर कंडीशन में क्या कंडीशन होता है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप करोगे कि ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल, व्हाट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल? रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब एक्सोनल मेम्ब्रेन के आउटर साइड इज पॉजिटिव, इनर साइड इज मेम्ब्रेन नेगेटिव, दैट इज नोन एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन आता है कि what maintains the resting potential, what is the value of resting potential? That will be minus 70 millivolt. It is not only 70 millivolt, it should be minus 70 millivolt. Okay, it is minus 70 millivolt. Question आता है कि why the resting potential is maintained due to the presence of this sodium potassium pump. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, दिस सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब द ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम में हाउ मेनी सोडियम आयंस कम्स इन गोज आउट एंड हाउ मेनी पोटेशियम इज कमिंग इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि when the sodium ion influx occurs, at that time outer side become negative, inner side is become positive. This event is known as depolarization. The new charge difference will be known as action potential. Action potential and nerve impulse is the same thing, only these two are the different nerves. Okay, so these are few important question from your nerve के जो part था वहाँ से, ठीक है। and नेक्स्ट हम देखेंगे साइनैप्स के जो स्ट्रक्चर है, दैट इज साइनैप्स आप लोग कर रखे हो, तो अभी हम साइनैप्स की एक बार स्ट्रक्चर और साइनैप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखो, दिस इज साइनैप्स, एक नर्व की एंडिंग एक्सोनल नर्व, दूसरी नर्व इम्पल्स नर्व के जो है दैट इज द शुरुआत, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द साइनैप्स। ओके, साइनैप्स के अंदर देयर आर 3 पार्ट। व्हाट इज फर्स्ट, जहाँ पर एक्सॉन के टर्मिनल एंड है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, दैट विल बी नोन एज द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, एंड ठीक नेक्स्ट जो डेंड्रॉन के पार्ट है, जो साइटोन के पार्ट है, दैट विल बी नोन एज पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सो फर्स्ट जो मेम्ब्रेन था दैट वाज नोन एज द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है दैट विल बी नोन एज द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। दोनों के बीच में देखो, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन आर नॉट एसोसिएटेड टू, दोनों के बीच में क्या है, गैप है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गैप? दिस गैप इज नोन एज द synaptic cleft, right? This gap is known as the synaptic cleft. और इन तीनों चीज को हम एक साथ क्या कहेंगे? These 3 things will be together known as the synapse. These 3 things together will make the nerve synapse. नर्व के जो synapse part है that it is made up of. अब क्वेश्चन है कि एक जो नर्व फाइबर है, एक नर्व फाइबर से दूसरी नर्व फाइबर तक हाउ द सिग्नल विल गोइंग ऑन। सो हियर एसिटाइल कोलिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ACH. So that ACH will responsible for carrying the nerve impulses through their synapse. Okay, जैसे ही साइनैप्स जो है वो नर्व इम्पल्स तक, मतलब नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, मतलब यहाँ पर पहुंच जाता है, सो एसिटाइल कोलिन विल गेट रिलीज, और वही एसिटाइल कोलिन ऐसे रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन आकर पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन हो जाता है। जैसे ही ये पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन होता है, सो it will increase the stimulation in the post synaptic membrane. Okay, like this it will be circulating. Okay, so that is all. Next next जो है ब्रेन के बारे में हम कुछ पॉइंट करेंगे। तो बेटा आप सबने ब्रेन के ये तो कर लिया था कि ब्रेन के जो कवरिंग है
दैट कवरिंग इज नोन एज द मेनिंजेस। ओके, तो एक बारी और कर लेते हैं फटाफट कि ब्रेन जो है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये एक ऐसी बॉक्स के अंदर हो प्रेजेंट होती है। एक बॉक्स के अंदर, सपोज दिस इज द ब्रेन, ब्रेन, और यहाँ पर जो बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन है, दैट बॉक्स विल बी नोन एज द cranium. So cranium is basically a part of the skull and it is made up of bones. So that is the cranium. लेकिन the thing is that ये ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर चढ़े हुए होते हैं। ठीक है, ब्रेन इज अगेन कवर्ड बाय वन मेम्ब्रेन, a very thin inseparable membrane covers the brain. Okay, so what is the name of that covering? The name of that covering is meninges. So brain is covered by meninges, but brain is present within the cranium, right? So ये जो meninges है, इस meninges के different layer है. We have to do that layer. Okay, meninges की layer क्या है? Suppose this is the outer side of the brain. This is the inner side of the brain. Okay, now look. There will be three layers. थ्री लेयर meninges एक थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिनके आउटर मोस्ट लेयर विल बी नोन एज द डूरा मैटर, नेक्स्ट लेयर विल बी नोन एज द arachnoid matter, and the last layer will be known as the pia matter. So these are the three layers of meninges. Question क्या आता है? What is the outermost layer of meninges? What is the innermost layer of the meninges? Then question आता है कि which layer of the meninges will be in direct contact with the brain. तो आपके इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि सपोज यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे ब्रेन प्रेजेंट होता है, मतलब ब्रेन और पिया मैटर की डायरेक्ट कांटेक्ट है, डूरा मैटर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। एरेक्नॉइड मैटर जो है बेटा, दैट इज वन फीचर्स, दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द मैमल्स। एरेक्नॉइड मैटर वाला जो लेयर है, दैट शुड बी प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मैमल्स, बाकी किसी में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो दैट इज ऑल। नेक्स्ट हम करेंगे कि फोर ब्रेन, आपको पता है कि फोर ब्रेन के पार्ट है दोनों। सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर विच आर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम। यहाँ तक तो आप सबको पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर ब्रेन के सेरेब्रम के कुछ पार्ट करेंगे। सो सपोज नाउ वी आर मेकिंग अबाउट द सेरेब्रम। Cerebrum is again divided into some small chamber or small lobes. Let's see what is the name of those lobes. This would be frontal, parietal, temporal, and occipital. राइट। तो यहाँ पर टोटल 4 लोब्स है ब्रेन के, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। और दोनों के बीच में जो सेपरेटर है ये और कुछ नहीं है, ये ब्रेन के ही
फोल्डिंग है। ब्रेन में बेसिकली क्या होता है, ब्रेन के अगर आप सरफेस देखोगे तो दीज आर प्रेजेंट लाइक दिस वेवी लाइन। एक यहाँ पर एलिवेटेड रीजन होता है और एक यहाँ पर डिप्रेशन होता है, ठीक है। सो द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द एलिवेटेड रीजन, व्हाट इज द depression. So elevated part will be known as the elevated part of forebrain will be known as the gyri, whereas the depressed part, wave के जो नीचे वाला part है, that should be known as the sulci, ठीक है। सो दैट इज फोर ब्रेन। बाकी फोर ब्रेन के फंक्शन के हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है वगैरह, ये सब आप लोगों ने किया है। हाइपोथैलेमस में हमारे पास एक छोटा सा पार्ट होता है दैट इज नोन एज द एमिगडाला, ओके। एंड और बेटर टू से हिप्पोकैम्पस एक रीजन होता है दैट इज नोन एज द हिप्पोकैम्पस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिप्पोकैम्पस इज रिलेटेड टू आवर लॉन्ग टाइम मेमोरी, ओके। कोई कोई है जिनके रिटेंटिविटी बहुत हाई होता है, सो इनके हिप्पोकैम्पस जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हिप्पोकैम्पस में क्या है, कुछ रीजन है। व्हाट आर दोज रीजन, रीजन है कुछ बोन्स है। व्हाट इज दिस बोन, that will be hippocampus bone, that would be hypothalamus, amygdala, hippocampus bone, okay. So these four together makes the hippocampus bone which will give them the long term memory. इनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए that is the amygdala, okay. So that is about the hippocampus bone. नेक्स्ट हम करेंगे कि ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, तो व्हाट आर दीज वेंट्रिकल, ओके। ब्रेन वेंट्रिकल्स के नाम, एंड ब्रेन वेंट्रिकल जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन क्या है, ब्रेन एक सॉलिड स्ट्रक्चर है या फिर एक लिक्विड स्ट्रक्चर है। ब्रेन इटसेल्फ सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर जिनके अंदर कुछ कैविटीज है और उस कैविटीज के अंदर एक फ्लूइड सस्पेंडेड होता है दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ द क्वेश्चन जो आता है कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमें कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स, in the brain ventricles, and it is also present in the arachnoid matter, in the subdural space। arachnoid matter के ठीक नीचे एक स्पेस होता है that is known as the subdural space। तो subdural space इन दोनों जगह पे cerebrospinal fluid is present, okay। so that is all about the brain। next is that कि एक चार्ट cranial nerve के नाम और उनके सीक्वेंस याद रखना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। so what are these names, we are now discussing about the different types of cranial nerve। okay, so chart we will do like this कि first name and then nature and then function, okay। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे बॉडी में ह्यूमन की पार्ट्स कितने सारे cranial नर्व होता है। सो वी हैव 12 pairs ऑफ cranial nerves, okay। so first one is olfactory, next one will be optic, next will be oculomotor, next will be trochlear, next will be trigeminal,
Next will be abducens. Next will be facial, glossopharyngeal, vagus, accessory, and last will be hypoglossal. So these are the name of the 12 cranial nerve. इनके सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है. क्वेश्चन तो एक ये आता है कि हाउ मेनी एक cranial nerves are there, तो that will be 12 pairs of cranial nerve are there. And name इस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है what is the third cranial nerve or what is the ninth cranial nerve, like this it will come. Okay, so we have to know the sequence: olfactory, optic, then trochlear, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, फेशियल 1 2 3 4 करके इनके ऑर्डर हमें याद रखना है. वेगस नर्व जो है क्रेनियल में से, वेगस जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, जो कि हमारे ब्रेन से लेकर हमारे पैर तक इनके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है. नेक्स्ट ट्रॉक्लियर जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व. ओके, ट्रॉक्लियर जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व. अब है नेचर. नेचर क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इनके नेचर है सेंसरी, ठीक है. देन ऑप्टिक के भी जो नेचर है दैट इज ऑल्सो सेंसरी. ओके, नेक्स्ट जो दो है इनका है मोटर, मतलब ऑकुलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर दोनों के हैं नेचर जो है दैट इज़ द मोटर नर्व. एंड देन जो आपके फिफ्थ नर्व है दैट इज़ द ट्राइजोमिनल नर्व, दैट इज़ द मिक्स्ड नर्व. वैसे ही अगर हम देखें तो सेवेंथ नर्व जो है दैट मीन्स फेशियल नर्व जो है. ओके, फेशियल नर्व जो है दैट इज़ द मिक्स्ड नर्व. एंड आपके जो 10th नर्व है दैट इज़ द वेगस नर्व, दैट इज़ द मिक्स्ड नर्व. ओके, मतलब आपके जो 5th नर्व है दैट इज़ द 1 2 3 4 5 ट्राइजर्मिनल, दैट इज़ द मिक्स्ड. और देन 5 7 5, दिस इज़ द 5th नर्व, दिस इज़ द 7th नर्व एंड दिस इज द 9th नर्व. बेटा मैं इसमें क्यों फोकस कर रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन जो आता है इट विल कम फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिक्स्ड नर्व. ठीक है, तो इसमें से आपको मेनली यही करना है कि टोटल क्रेनियल नर्व्स के नंबर क्या है, ऑर्डर वाइज इनका नाम क्या है, और इनमें से विच वन इज द मिक्स्ड नर्व. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द ब्रेन. ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व जो है दैट इज द आपके 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व इज देयर. सो 12 पेयर्स ऑफ cranial nerve and 31 pairs of spinal nerve is generally present in our body. Okay, so that is all about the neural control and coordination. That is all about the neural control and coordination. Okay, thank you beta.